क्योंकि सर जरूरी है. Hi everybody and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene with me Dino live right here on FM 91, and today we have a guest who I'm very excited to have on the show. She's a content creator. She is an actress. She is very loved, very well respected in the scene. I'm really excited to have her on the show. Please welcome Momina Munir. Hi guys. Hey, कैसी है Momina? I'm good. When I started watching content creators on YouTube, early days, you were one of the first faces I saw. You were so cool when you started, and you're still very cool. I? No, you were, because you were so different, right? You were like this young kid in school who was just like telling us about her life, which I thought was very cool. Yeah, no, I started YouTube when I was 15. 15. I'm 24. Wow. Turning 25 this year. So almost 10 years. Yeah, 10 years in the game. So very young when I got caught into the YouTube. The YouTube world. I mean, like, because, you know, I know कि बच्चे शुगल मस्ती में करते हैं, and that's okay, like everybody does it. But were you one of those kids that said, oh, I'm going to be a YouTuber and I'm going to be a star? I have a story for this. Okay. So I started watching Irfan Junejo. Yeah. Shout out to Irfan Junejo. Shout out to Irfan bhai. He would do these vlogs, really amazing vlogs. Very really natural. Natural, everyday life. Also in Urdu. हाँ. तो मैंने कहा उर्दू में व्लॉग्स ये क्या चीज है, ये तो मैं भी करूंगी. कि मुझे तो लगा था कि इंग्लिश ही मार्केट होती है. उर्दू में कौन करता है? मतलब यूट्यूब हम देखते हैं लेकिन इंग्लिश में ही बनाना होगा. यूट्यूब थोड़ी बाहर की कंपनी है. तो आई वुड मेक ऑल माई कॉन्टेंट इन इंग्लिश. व्हेन आई वॉच्ड इरफान भाई आई वाज लाइक आई कैन randomly record everything in my life and put it out there ताकि मैं और मेरे दोस्त जब हम बड़े हो जाएं तो हम अपने बच्चों को दिखा सकें, फैमिली को दिखा सकें. So I would record those vlogs. I think I started YouTube in 2016 with makeup. Then in 2017 and 18, I switched to vlogging. Okay. So like content se transition into acting. Now that is obviously a natural progression. A lot of content creators go into acting. Why did you want to try this out? So one of them was Dana Neer. And I get this random Instagram text from Dana Neer ke, oh, I'm on a set, can you please show up here? Send me your number. I sent her my number and eventually she sent the number to MD Productions and she was doing very filmy at the time. Dana Neer. Yeah, she recommended me to Ali Hassan, the director. That's very cool. So lovely of her, वैसे. Wow. So she recommended my name to Ali Hassan, who was directing very filmy. And they called me on set. I went there and they took my screen test. By the way, set pay. Set pay. The screen test is in the drama. It wasn't even a test. It's a scene in the drama. Okay. तो मेरा screen test हुआ and उसी वक्त अली भाई was like easy है, कर लेते हैं ये. क्योंकि सर जरूरी है. Assalamu alaikum everybody and welcome to Dost Kya Scene Hai, the podcast, and today we have a very very special program, greatest of all time in the world of competitive gaming. Evo tournament के 7-time world champion, Tekken की दुनिया के बादशाह. I mean there is nobody like him and we're very proud that he represents Pakistan all over the world. Please welcome on the show the one and only Arsalan Ash. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. मैं बड़ी चीज़ लगी है कि जो लोग होमवर्क करते हैं ना, अक्सर क्या होता है, मैं पॉडकास्ट में जाता हूँ, आप 3 दफ़ा जीते हैं वो चैम्पियनशिप. मैं कहा नहीं 7 टाइम. इवन के जो बाहर फैंस से मिलते हैं 6 दफ़ा जीत चुके हैं ना आप, 6 टाइम है नहीं 7 टाइम. तो नहीं बट ये आप वैसे बड़ा you're saying this in a very casual manner because you're the champion. But it is a big thing, bro. Like, have you ever कभी आपने बैठ के सोचा है कि 7 टाइम जीत गया हूँ यार मैं? I think has it ever hit you? नहीं, मैं फील कर ही नहीं सकता हूँ. मुझे लगता है जो वो इंसान कर रहा होता है मैं भी शायद फील नहीं कर सकता. लाइक हाँ, ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. जो लोग मुझे कहते हैं कि 7 It's a very big achievement. वो चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन. How does that make you feel जब लोग आपको कहते हैं कि यार greatest of all time? I feel very proud और बहुत अच्छा लगता है कि जो जितना हार्ड वर्क किया है. अक्सर क्या होता है लाइफ में, आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन उसका आपको मिलता नहीं है मतलब सिला. लेकिन आई एम हैप्पी कि जितनी मैंने मेहनत किया और जिस तरह कि आपने बताया सच भी है कि मेरा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और वहाँ से निकल कर आना और प्रूव करना सब कुछ. और आई फील वेरी प्राउड और ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया मेरे पे. 8 साल का बच्चा है, टेकिंग खेल रहा है, उसके लिए वीडियो गेम है, खेल रहा है, फन है, इंजॉयमेंट है. वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आपने कहा कि यार ये
इंजॉयमेंट तो है, अगर मैं प्लेयर बन जाऊं और खेल जाऊं और कुछ कर जाऊं, ये सोच कब पैदा हुई आपके अंदर? तो 2000 आई थिंक 18 की बात है, बल्कि इससे पहले 2016 की बात है, जब मैं एक GMC इवेंट होता था रावलपिंडी के अंदर, तो वो मैं जीता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट। तो उसके बाद से ना मुझे फील आया कि यार पाकिस्तान में तो इवेंट जीतना इज़ ओके, मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि उस बाद से लोगों ने खेलना छोड़ दिया मेरे साथ। तो तब एक फील आई मेरे अंदर 2018 के अंदर कि यार चांस लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, शायद मैं जीत जाऊँ। पाकिस्तान में तो चैंपियन है जी, लेकिन अब इंटरनेशनली जाना है, इंटरनेशनली लोगों को मनवाना है कि हाँ यार मैं खेल सकता हूँ, मेरे साथ आप खेलें, आपको पता चल जाएगा। वो जो पूरा प्रोसेस था पहला बाहर का टूर्नामेंट करने का, हाँ, वो प्रोसेस कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आई थिंक ये सबसे हार्ड काम था मेरे लिए, क्योंकि अगर आपके पैसे होते हैं ना तो आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर। अभी आंटी मेरी थोड़ी सी अमीर थी, हमारे मम्मा तो नहीं थी लेकिन आंटी अमीर थी, उनसे कहा आंटी सपोर्ट कर दें, उन्होंने थोड़े पैसे दिए, फिर मेरे दोस्तों ने पैसे, एक फिर दूसरा सेट था स्टिक जिस पे मैंने खेलना है, तो वो भी नहीं थी मेरे पास, तो हम तो फट्टे पे खेला करते थे ना तब। हाँ, मोहल्ले के अंदर होती है। हाँ, यहाँ भी काशी में भी हुआ करते होंगे, तो उस पे खेला करते फट्टे पे। मैंने स्टिक का कहा, फिर एक दोस्त ने 25-30 हज़ार की स्टिक अरेंज कर दी। तो वो पीपल बिलीव्ड इन यू। हाँ, क्योंकि मैं जीतता था, ये सबसे अच्छी चीज थी। People believed in you. They were like, यार नहीं यार ये कर सकता है। हाँ। By the way, shout out to someone from our team. His son was like, he's like 12 or 13 and he wore a whole suit to come and see you. He like wore a suit. It's so cute. It's incredible. At that time, did you already believe you could become the best player in the world? मतलब ये जो early days थे, आपको लगा था कि यार I can be the best player in the world? नहीं, I don't think so. तब आई टेकन 6 खेला करते थे हम, लेकिन मैं तब लगा था कि पाकिस्तान में सबसे मेरे से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। तब ये फीलिंग आई थी, क्योंकि एक ना प्लेयर था वैस काला। तो क्या नाम है उसका? अवैस काला। ओके। वो जब डॉक्यूमेंट्री आई नेटफ्लिक्स के ऊपर तो वो लिखा वैस काला बामुकाबला अरसलान बच्चियों वाला। हमारे सबके एक निकनेम किसी ने मैसेज भी कर दिया अरसलान बच्चियों वाला। I mean, you've been consistently winning, but लोगों को I think ये भी बताना थोड़ा जरूरी है कि जो हार होती है उससे भी बंदा बड़ा सीखता है। हारने से बेहतर है जो वो चीज़ मैंने की, मैंने ट्राई किया। कि ट्राई करना जरूरी है। ट्राई करना इज रियली इंपॉर्टेंट। जीतो हारो मैंने नहीं सोचा, मैं कहा यार है 500 है, आज बाद में लोगों को पैसे पे करने बड़े वाला लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करूंगा। मैं फिर मुझे GM से जीत के मैं 20,000 मिला, वो जिंदगी में इतना पैसे में पहली दफा लाइफ। लेकिन वही लेकिन वो वर्थ इट था कहीं ना कहीं। What was that like in your head कि मैंने जापान भी जीत लिया और अब मैंने लास वेगस भी जीत लिया है? Like वो what was that mindset उस वक्त? आई थिंक मुझे याद है कि जब मैं जापान जीता था, मुझे अब मैं जीत गया हूँ, मैं स्टेज पे हूँ और मैं पहली दफ़ा था स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे गया और मैं सेलिब्रेशन भी आई वाज लाइक डूइंग दिस यू नो। मैं डरा हुआ था कि यार लोग क्या करेंगे, अब तो मैं सेलिब्रेशन चंपे लगा रहा हूँ। तब मैं वाज लाइक, तो अब उसके बाद क्या हुआ, लोग आ रहे हैं सेल्फीज लेने में, यार ये क्या सेल्फी क्यों ले रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले दफ़ा किसी ने सेल्फी लाइफ में मेरे साथ, क्योंकि मैं सबसे पहले कोई जानता ही ना पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान बाहर के मुल्क में जापानीज़ लोग आ रहे हैं सेल्फीज ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे लोग कहते हैं आप जीत चुके हो, कंग्रेचुलेशन। में कहा हाँ ठीक है, तो कुछ दिन लगे मुझे। And he is finally here on the program. आपके अपने पसंदीदा the superstar Harvey is on the show. Thank you. कैसे? I'm good. When he started singing, you got fame at a very young age because of Battle of the Bands. You joined Odge. The band got a lot of great feedback. लोग पसंद आ गया, fan following बन गई, सारा कुछ हो गया. Did Abdur Rahman, the young Abdur Rahman, know what was going on? मतलब पता चल रहा था आपको कि हाँ मैं फेमस हो गया हूँ और ये हो रहा है, क्योंकि यंग होता है ना, बच्चा होता है। मुझे अभी भी नहीं पता लगा मतलब I don't know. Let's talk about Hum first. This song that's come out, I mean, how was the process of making the song, approaching it? थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं. Like what led you to release this as a single? पे हुआ ये कि there was a ukulele sample. Okay. Which him and I liked because of the progression. But like अच्छा progression है. 15 मिनट में हमने गाना बनाना है. सही है. और उसके लिरिक्स मेलोडी सब 15 मिनट में होगा. तो उसकी मेलोडी बना के मैं दूसरे कमरे में गया था, उसका एक्सपोर्ट लेके कि मैं इस पे लिरिक्स लिख दूंगा. तो मैं लिरिक्स लिख के मैं जैसे ही कमरे में घुसा हूँ और मैं माइक पे खड़ा हुआ हूँ, अगले ने I was like bro bro and he went like कर लोगे okay. नाले कर लेंगे.
So I sang the whole song in head. Did it with the head voice, yeah. Yeah, so the whole song is hum chale ja rahe. So you know, just to strain less here. Yeah. So when the song came out, like, But sometimes that works. it worked for that song. It did. Yeah. So it was the right vibe. Then we got Danish to play the song for us. Danish Irvani. He played. He also plays live with me. So he did the guitars in the song. और बस वो गाना हो गया, फिर पड़ा रहा, फिर हमने बोला यार रिलीज कर देते हैं, फिर हमने रिलीज कर दिया. कुछ चीजें हैं by the way, there's a song which is too much. मैंने रिलीज ही नहीं किया. अच्छा रिलीज नहीं हुआ है. वो नहीं किया मैंने. अच्छा नहीं किया क्योंकि it's too much. वो बहुत है. Oh God. Okay, but कभी आएगा बाहर? Will we ever see a time when that song comes out? When I don't feel that strongly about it. Oh, okay, like when sorry. I don't feel personal damage from that. Okay, song. when you're over it. सही, makes sense. Okay, what was your first professional concert? Concert was I think I opened Mustafa Zahid in IBA with Auj का पहला version. बहुत पहले. Okay. Like 3-4 years before Battle of the Bands. Again, personal सवाल पे हम नहीं Personal आएंगे. सवाल. सही है. क्या हम हावी ने लिखा है या अब्दुल रहमान? हम Abdur Rahman ने लिखा. Flower he gets in concerts. What does he do with the flowers? Oh, he they're gets in my studio in my room. अच्छा वाकई बहुत I ज़्यादा. keep most of the fan gifts. अच्छा okay. Like I get a lot of things. कभी कोई रंग बरंगे पापड़ दे देता है मुझे. अरे वाह. I still say बरंगे. बरंगे. रंग बरंगे पापड़. I can't say burgundy. I say burgundy. Burgundy. हावी ओलेग का सवाल है. हावी इंटरनेशनल कब परफॉर्म करेंगे? Like concerts out of Pakistan. I think we did Doha a month back. We're going to be doing some stuff I cannot say abhi. Yeah, but international tours are lined up. All lined up. Wonderful. How does he manage concerts, traveling, family, friends, and everything, and still slay every time? I don't. Honestly speaking, it's in shambles. It is. Yeah, seen bad, boss. What's something you're currently learning or trying to improve in your personal life? Balance. Yeah, we just talked about this. Yeah. अभी आपने सुना इनका schedule. Balance. I'm trying to improve. I'm trying to remain human by staying in touch with people I have, friends and all. अभी आज मेरी बात हुई एक दोस्त से. He was very angry at me. Really? कह रहा था यार तू बदल गायब गया. है. हाँ, तू बदल गया. मुझे काम था and I called you and you didn't answer. And then he was like मैं क्या गुस्सा करूँ तुझसे, मुझे पता है कि तू अब एक I know you're messed up right now and I can't really do anything. And I was apologizing. I was like I'm sorry. और मैं क्या बोलूँ और and he understood. जो बड़ी बात ये है, मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो समझते हैं. और वो करीबी इसीलिए. No, that's real friendships. Those are the friendships that are. गुस्सा होते हैं वो, लेकिन वो फिर कहते हैं यार क्या करें. I missed all of my friends' weddings. Are the same, all dude? of them. That and is I was tough. playing in other weddings. Oh my God. And representing the culture, but of course taking it along with hip hop. Please welcome on the show, Babar Mangi. Hello Dino bhai, thank you for such an amazing No, यार, of introduction. course नहीं यार, आप मैं वाकई बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी. How do you feel when people come up to you and say कि यार आप पाकिस्तान के पहले सिंधी हिप हॉप आर्टिस्ट और सिंधी को हिप हॉप से मिक्स करना वगैरह वगैरह, तो आपको कैसा लगता है जब लोग इस तरह की बात आपसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग ज्यादा तारीफ कर लेते हैं. लाइक इट्स गुड. मुझे ये नहीं था लाइक व्हेन आई यूज्ड टू डू म्यूजिक व्हेन आई वाज यंगर, तो मैं ये नहीं सोचता था कि जो है ना अच्छा यार ये इतनी बड़ी चीज हो जाएगी. आई वाज जस्ट अ किड मेकिंग म्यूजिक इन द बेडरूम. सही है, और ऐसे ही शुरू होता है. बट अब आके ये रियलाइज होता है कि अच्छा उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है. तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि आई एम लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल के अच्छा एक सर्टन जेनरा है एंड देयर इज दिस थिंग कॉल्ड हिप हॉप एंड थ्रू इट मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है. लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग एम्पावर हो रहे हैं. मेरी आवाज़ अब लोग बड़ी सीरियस ले रहे हैं और मैं एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जब ये आपको रियलाइजेशन होती है तो ज़ाहिर एक बड़ा डॉन्टिंग एक मोमेंट होता है किसी भी यंग इंसान पे. यार मैं तो मजे कर रहा था, ये तो एक सीरियस चीज बन गई है. हाँ. तो ये कब आपको हिट की ये बात? आई गेस ये मुझे तब हिट की when I went to Coke Studio. मतलब I ended up in Coke Studio. और उसके बाद when I told some of the people that जो कि मेरे अराउंड मेरे दोस्त थे, लोग थे,
So there was one friend of mine. You want to give that name? Yeah, out for that Zishan. Zishan. One friend of mine, Zishan. Old friend? Yeah, an old friend. और मैं उससे मिला. I was like casually just roaming around सक्खर, तो उससे मिला. In सक्खर, हाँ, in सक्खर. तो उसने पूछा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने बोला यार आजकल बस म्यूजिक कर रहा हूँ ये वो. तो मेरे मुंह से निकल गया यार रिसेंटली अभी कोक स्टूडियो में गाना आ रहा है मेरा. तो मैंने उसको देखा, उसके बाल खड़े हो गए ये वाले. He got goosebumps because that person saw me struggling since childhood and मेरे लिए वो normalize हो गया था because I already heard the news. तो उस बंदे ने वो बड़ा emotional हो गया, उसने मुझे हक किया जो है ना, उसने बोला I'm so proud of you. Babar Mangi, how was he introduced to hip hop and what led you and what was the journey that led you to become like to come up with this idea of merging these two cultures together, hip hop and Sindhi culture? So at first it was mainly because I think I've told this in some of my interviews. Okay, it was mainly because of my elder brother. So his name is Kazim. और वो मुझे एक सोनी एरिक्सन की फ़ोन में Eminem, Lil Wayne और इसके गाने जो है ना, he loaded those songs. He used to hear those songs and I'm like यार मुझे भी ये गाने सुनने, मुझे भी इसमें कॉपी करके दो. How old is he than you? How old? He is 4 years older than me. Okay. मैं गाने सुनता था, वो मुझे अच्छे लगते थे, तो I started writing. So I thought कि अच्छा यार मैं ये इसलिए गाने लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं. सही है ना, because I like doing it. सही है. Then some time went by and I realized that hip hop is a form of expression for me. मतलब I write these songs and I want to be a hip hop artist because when I was younger in my school, तो मतलब मैं sort of एक निकम्मा बच्चा था जो कि पढ़ता नहीं था. सही है ना, तभी तो हम आर्टिस्ट बने क्योंकि हम सभी ऐसे थे. तभी तो हम आर्टिस्ट बने बॉस. What was the journey like that कि यार मैं okay now I've decided hip hop or I'm going to use my regional language to this? So at first when I was young, 16-17 साल का, तो at first it wasn't a conscious decision. It wasn't like मैं 16 साल की उम्र में सोच रहा था कि जो है ना अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाऊँ. सही है, you get it. It was very unconscious decision. Yeah, you're a kid. Because I was a kid and I was like यार ये लैंग्वेज है जो मुझे आती है और इसमें मैं लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैं बात कर सकता हूँ, उसमें मुझे बातें पता है, मुझे कन्वर्सेशंस पता है. So पहले अनकॉन्शियस था एंड देन बाद में जब मैं कर रहा था एंड पीपल सॉ कि अच्छा ये सिंधी में कर रहा है, उर्दू में क्यों नहीं कर रहा, तो हर कोई मुझे बोलने लगा. जब मुझे लोग बोलने लगे ना, तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मैं कॉन्शियस में आया कि अच्छा आई एम टेकिंग सिंधी फॉरवर्ड एंड पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. Some people problem as in के why सिंधी क्यों कर रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, इसमें तुम कुछ नहीं कमा सकोगे. Even if you are doing music, do it in Urdu because इसकी कोई audience ही नहीं है. और who will pay you? What kinds of brands will pay you? Who will give you a concert? So तब मुझे conscious में आया कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो एक different चीज़ है. But then I told myself कि why not? मतलब give me a good reason why not Sindhi.